So the topic is carbohydrates. First of all, let us know what are carbohydrates. So carbohydrates are macronutrients and are one of the three main ways by which our body obtains its energy. They are called carbohydrates as they comprise carbon, hydrogen and oxygen at their chemical level. ये पहली बात तो कि ये हमारे बॉडी के लिए एक important nutrient का source है, energy का source है, one of the three important sources of energy for us, and they are composed of basic uh, structure. The components of the carbohydrate elements, important elements are carbon, hydrogen, and oxygen at their biochemical level, at their chemical level, and they are essential nutrients which include the carbohydrates are essential nutrients which include sugars, fibers, and starches. We will be discussing all these things in further slides. So according to definition of carbohydrates, they are essentially hydrates of carbon. Carbohydrates means hydrates of carbon. That is, they are composed of carbon and water and have a composition of CH2ON. So carbohydrates can be polyhydroxyaldehyde, ketones, and their derivatives. So according to definition, according to their name, they are hydrates of carbon and they are composed of basic structure. Chemical composition, the basic structure is CH2ON. So you can see in slides that carbohydrates have a basic chemical composition of CH2O, means the carbon atom is attached with different covalent bonds. One covalent bond is attached with oxygen, forming OH, COH, and other carbon, and the other on the other side, it is attached with hydrogen with a covalent bond, single covalent bond, and the basic structure is CH2ON. So, what are the different major functions within the body? In our body, they provide different function. They have major functions in our body. What are the different functions? First is providing energy and regulation of blood glucose. So the most important part of or the major function of carbohydrates in our body is to regulate, to provide energy and to regulate blood glucose level in our body. The second is sparing the use of proteins for energy. They spare proteins for energy. If they are not available, then fats and carbohydrates, fats and proteins are utilized. So they prevent or spare proteins for utilization as a source of energy. So carbohydrates are first of all utilized as a source of energy. अगर हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है किसी कारण से बॉडी में, तो सबसे पहला कौन सा यूटिलाइज होता है पार्ट? हमारे बॉडी का कार्बोहाइड्रेट पार्ट यूटिलाइज होता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. थर्ड पॉइंट इज ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स एंड प्रिवेंटिंग कीटोसिस. ये क्या करते हैं? ये फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन करते हैं और कीटोसिस को प्रिवेंट करते हैं. फोर्थ इज बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन प्रोसेस. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द बायोलॉजिकल recognition processes. Fifth is they are important part of flavor and sweeteners. And the sixth is dietary fiber. They are source of dietary fibers in our body. So functions of carbohydrate can be treated in this way. Carbohydrate spare protein so that protein can concentrate on building, repairing and maintaining body tissues. कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? प्रोटीन्स को स्पेयर कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं ताकि प्रोटीन यूटिलाइज किए जा सके हमारे बॉडी के बॉडी बिल्डिंग में, बॉडी के रिपेयरिंग में और मेंटेनिंग बॉडी टिश्यूज इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होते हैं, ये प्रोटीन को बचा के रखते हैं ताकि प्रोटीन हमारे बॉडी के बिल्डिंग में, रिपेयरिंग में, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज में यूटिलाइज किए जा सके. For fat to be metabolized properly, carbohydrates must be present. Carbohydrates का presence important रहता है fat के metabolism में हमारे body में. If there are not enough carbohydrates, then large amounts of fats are used for energy.
अगर हमारे बॉडी में फैट कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, तब उसके बाद क्या होता है, देन फैट्स आर यूटिलाइज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले होता है कि कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज हो जाए। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होता है तो फैट यूटिलाइज होता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट इज नेसेसरी फॉर रेगुलेशन ऑफ नर्व टिश्यू। कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट होता है नर्व टिश्यूज के, नर्व हमारे नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे ब्रेन में जो है एनर्जी का ये एकमात्र सोर्स होता है। मतलब ब्रेन सेल्स हमारे जो है कार्बोहाइड्रेट को ही यूटिलाइज करती हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। Certain types of carbohydrates encourage the growth of healthy bacteria in the intestine for digestion. हमारे शरीर में, हमारे इंटेस्टीन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं हेल्दी बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। ठीक है। सम कार्बोहाइड्रेट्स आर हाई इन फाइबर। बहुत से कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर का क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है, जो कि प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन से और लोअर करते हैं रिस्क ऑफ सर्टेन डिजीजेस। कई डिजीज के रिस्क को क्या करते हैं, घटा देते हैं, जैसे कि कैंसर, हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज। अगर हम लोग फाइबर इनटेक रेगुलर करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, तो कई डिजीज से हम लोग बच सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है और हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है। तो दे आर इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग our body functions as well. So we can classify carbohydrates in different ways. The carbohydrates are divided into three major classes depending on whether or not they undergo hydrolysis and if they do on the number of products formed. सबसे पहले कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग? पहला है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स होते हैं ये, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, which cannot be decomposed by hydrolysis to give simpler carbohydrates। मतलब इससे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिन्हें हमें मोनोसेक्राइड कहते हैं। एग्जाम्पल्स है मोनोसेक्राइड के, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दोनों के ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, 6C6H12O6। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स एंड देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12O6। दूसरा है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स which yield different definite number of monosaccharide molecules on hydrolysis। मतलब ओलिगोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें 2 से 9 मोनोसेक्राइड्स इकट्ठा करके बने रहते हैं। मतलब 2 मोनोसेक्राइड एक साथ मिल गए, या 3 मिल गए, 4 मिल गए, अप टू 9 अगर मोनोसेक्राइड मिलके एक नया कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ओलिगोसेक्राइड्स बोलते हैं। मीन्स ओलिगोसेक्राइड्स में 2 से 9 मोनोसेक्राइड होते हैं, 2 to 9 मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। एग्जाम्पल है डाइसेक्राइड्स। दे इंक्लूड डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं? ऐसे ऐसे ओलिगोसेक्राइड जिसमें, जो कि हाइड्रोलिसिस पे 2 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स यील्ड करते हैं, ऐसे ओलिगोसेक्राइड्स को हम लोग डाइसेक्राइड कहते हैं। एग्जाम्पल है सुक्रोज एंड माल्टोज। सुक्रोज एंड माल्टोज बोथ हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C12H22O11। डाइसेक्राइड्स के एग्जाम्पल हो गए, डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल क्या हो गए? माल्टोज एंड सुक्रोज। ये देखिए, सुक्रोज मॉलिक्यूल जो है उसका भी फॉर्मूला होता है C12H22O11, और माल्टोज का भी C12H22O11। अगर इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, इसको ब्रेक करते हैं हम लोग, तो ये सुक्रोज क्या होता है, ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और माल्टोज होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। तो अगर इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइसेक्राइड की, तो मोनोसेक्राइड्स हमें मिलते हैं। क्लासिफिकेशन पॉलीसेक्राइड्स। पहला हो गया मोनोसेक्राइड्स, दूसरा हो गया ओलिगोसेक्राइड्स, तीसरा है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स which have high molecular weight which yield many monosaccharides molecules on hydrolysis। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करें, उनको ब्रेक करें, तो ढेर सारे मोनोसेक्राइड्स हमें प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। एग्जांपल्स इसके, पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल है स्टार्च एंड सेलुलोज। Examples are starch and cellulose, both of which have molecular formula of
C6H10O5 n टाइम्स। देखिए ये स्टार्च का फॉर्मूला है C6H10O5 n टाइम्स। इसको अगर हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इनकी हाइड्रोलिसिस से, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से क्या मिला? n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिले। अब हम लोग मोनोसैकेराइड्स के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू थ्री डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। किस बेसिस पे? द प्लेसमेंट ऑफ इट्स कार्बोनिल ग्रुप, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इट कंटेन्स एंड इट्स कायरल हेडनेस। कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये भी आगे बताते हैं। तो इफ द कार्बोनिल ग्रुप इज एन एल्डिहाइड, द मोनोसैकेराइड इज एन एल्डोज। एल्डोज क्या है? एक एग्जांपल है मोनोसैकेराइड का। If the carbonyl group is a ketone, the monosaccharide is ketose. तो एल्डोज और कीटोज एग्जाम्पल है मोनोसैकेराइड्स के, डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप, कौन से कार्बोनिल ग्रुप है। उसमें अगर एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप है तो वो एल्डोज कहलाता है। अगर ये कार्बोनिल ग्रुप कीटोन है तो कीटोज कहलाता है मोनोसैकेराइड ये। तो मोनोसैकेराइड्स विद थ्री कार्बन एटम्स आर कॉल्ड ट्रायोजेस। अगर थ्री थ्री उसमें कार्बन एटम्स है तो उसको हम लोग ट्रायोसिस बोलते हैं। फोर कार्बन एटम्स है तो हम लोग टेट्रोसिस बोलते हैं। फाइव है तो पेंटोसिस बोलते हैं। एंड सिक्स कार्बन एटम्स है मोनोसेक्राइड में तो हम लोग उसे हेक्सोसिस बोलते हैं। These are examples of monosaccharides. Triose is an example of carbohydrate या monosaccharide जिसमें तीन कार्बन एटम्स होते हैं। टेट्रोस एग्जाम्पल है एरिथ्रोस जिसमें चार कार्बन एटम्स होते हैं। पेंटोज एग्जाम्पल है राइबोस। हम लोगों ने राइबोन्यूक्लिक एसिड पढ़ा हुआ है जिसमें पेंटोज शुगर होता है राइबोस। ठीक है, इसमें पांच कार्बन एटम्स होते हैं राइबोस में। और एग्जाम्पल है हेक्सोसिस का जिसमें कि सिक्स कार्बन एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में। एग्जाम्पल है हेक्सोसिस के ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से मोनोसैकेराइड्स कैन बी ट्रायोजेस, दे कैन बी टेट्रोजेस, दे कैन बी पेंटोजेस, दे कैन बी हेक्सोजेस, डिपेंडिंग ऑन उनमें कितने कार्बन एटम्स हैं। अब मोनोसैकेराइड्स में हम लोग ने देखा एल्डोजेस क्या होते हैं। एल्डोजेस हैव एन एल्डिहाइड ग्रुप एट वन एंड। एल्डोजेस में जैसे ये एग्जांपल है डी ग्लूकोज विच हैव एल्डिहाइड CHO। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है एक एंड पे, तो इसको हम लोग एल्डोजेस बोलते हैं। कीटोजेस क्या होते हैं? एग्जांपल है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? एक तरीके का कीटोज है जिसमें कि कीटो ग्रुप क्या है? यूजुअली एट C2। C2 पे क्या होता है? इसपे एक कीटो ग्रुप होता है। ये देखिए कार्बन नंबर 2 पे क्या होता है? कीटो ग्रुप होता है CO। तो हम लोग इसको कीटोज बोलते हैं। अगर कीटो ग्रुप है तो हम लोग कीटोज बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज बोलते हैं। तो डी ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डोज and D-fructose is an example of ketose. You can see in the slide what are D-glucose and what are D-fructose. D versus L designation. D और L designation क्या है? D stands for dextro and L for levo. Dextro and levo क्या होते हैं? Dextro and levo या D and L designations are based on the configuration of the single asymmetric carbon in glyceraldehyde. ठीक है, इसमें जो कायरल कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसमें कि चारों ग्रुप्स, चार बॉन्ड्स होते हैं तो चारों ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, तो ऐसे कार्बन एटम को हम लोग कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। तो डी और एल फॉर्म इसी पे डिवाइड होता है कि डेक्स्ट्रो है कि लीवो है। ये लोअर वाला फॉर्म ये इस तरीके से अगर हम लोग टू डायमेंशनल रिप्रेजेंट करते हैं किसी थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल को एक डायमेंशनल फॉर्म में, जैसे कि हम लोग ये बॉन्ड्स के थ्रू ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है? टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। जैसे ये फिशर प्रोजेक्शन है ग्लिसरल्डिहाइड, डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड का, इसे बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। सो फिशर प्रोजेक्शन क्या है? फॉर सुगर्स विथ मोर देन वन कायरल सेंटर। कायरल सेंटर हमने बताया कि ऐसे
ऐसे कार्बन एटम जिसपे कि चारों ग्रुप्स क्या होंगे, चारों बॉन्ड्स पे अलग अलग ग्रुप्स लगे होंगे। देखिए इस पे एक पे क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है। दूसरे पे क्या लगा है, ये पूरा ये ग्रुप लगा हुआ है। तीसरे पे OH लगा हुआ है। चौथे पे CH2OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कार्बन क्या कहलाता है, ऐसे कार्बन एटम्स जिसमें कि चारों ग्रुप्स, चारों बॉन्ड्स अलग अलग ग्रुप्स से अटैच्ड होते हैं। ऐसे कार्बन एटम को हम लोग कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग सुगर्स आर डी आइसो। ज्यादातर जितने नेचुरली ऑकरिंग सुगर्स होते हैं वो डी आइसोमर होते हैं, मतलब डेक्स्ट्रो आइसोमर्स होते हैं। सो डी एंड एल सुगर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर। देखिए ये दोनों क्या है, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। ये क्या है, एक दूसरे के, ये देखिए अगर मिरर हम लोग बीच में रख देते हैं तो ऐसा लगेगा कि इसका ये इमेज है। हम लोग बीच में एक मिरर रखते हैं तो इस तरीके से ये बन जाएगा। तो डी glucose is the mirror image of L-glucose. So dextro and L-levo sugars are mirror images of one another. They have the same name. Example D-glucose and L-glucose. Other stereoisomers have unique names. दूसरे stereoisomers होते हैं उनके यूनिक नेम होता है, जैसे ग्लूकोज है, मैनोज है, गैलेक्टोज है। ये क्या होते हैं, और नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स डिपेंड करते हैं कि उस मॉलिक्यूल में कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे उस मॉलिक्यूल के, इट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। तो एन, अगर नंबर ऑफ एन से एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं तो उसके स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे 2 to the power n, where n number of asymmetric centers. The 4 and 5 carbon ketoses are designated by inserting UL into the name of corresponding aldose. For example, D-ribulose is the ketopentose corresponding to the aldopentose D-ribose. ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है कार्बोहाइड्रेट्स के। ये अगर हम लोग मिरर रख दे तो ये डी एंड एल फॉर्म्स एक दूसरे के बन जाते हैं। और ये क्या है, फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर प्रोजेक्शन हमने बताया क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल इज फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। ये है फिशर प्रोजेक्शन। 3 डायमेंशनल अगर मानते हैं तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन।